quick review of it, proteins, different proteins. So simple protein, conjugated protein, and derived protein. Okay. So in case of simple protein, there are further two types: globular and scleroprotein. So in case of globular, you have albumin, globulins, gluteolins, prolamines, histones, globals, protamines, and lectins. Okay. So just go in the book and read about this. So just try to remember the weight of albumin, molecular weight of albumin. Last year they have asked the molecular weight of albumin. So it is 65,000 electron. Then just read about conjugated protein means what? Conjugated protein means if protein molecule is in a combination of other biomolecule. If it is in a combination of your DNA or RNA, it is known as a nucleoprotein. If it is in combination of sugar or your carbohydrate, then it is a glycoprotein. Protein molecule is in a combination of mucoprotein, various kind of sugar, mucopolysaccharide, then it is known as a mucoprotein. Then if it is in a combination of lipid, then lipoprotein, combination of phosphoric acid, then phosphoprotein, then chromoprotein, then metalloprotein. If it is a combination of metal, then metalloprotein. Okay. Derived protein, they are nothing but the hydrolysis product of these two. Metabolism of amino acid and proteins, it is a very important. So metabolism of amino acid and protein. So every adult has 100 gram of free amino acids. Every adult has 100 gram of free amino acid, which is known as a amino acid pool of individual. And out of this amino acid pool, glutamate and glutamine, they will contribute 50% of amino acid pool. Glutamate and glutamine, they will contribute 50% of amino acid pool. Okay, they are the essential amino acid, and rest of the essential amino acids will contribute 10% of amino acid pool. As there is no storage form of amino acid, as in case of glucose का storage form है glycogen. जब भी आपको ज्यादा ग्लूकोज है बॉडी में, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा. ग्लाइकोजन आपका लीवर में स्टोर हो जाएगा, और जब भी आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा और इमीडिएटली ग्लूकोज रिलीज होगा. तो इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो जैसे ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या फिर आपका लिपिड्स का होता है, वैसा स्टोरेज फॉर्म अमीनो एसिड के लिए नहीं है. आप बोलेंगे तो फिर प्रोटीन क्या है सर? क्या आपके पास प्रोटीन क्या है? फिर प्रोटीन इज नॉट a storage form of your amino acid. Obviously proteins are the polymer of amino acids, but protein is not a body's storage form of amino acid. बॉडी के स्टोरेज फॉर्म नहीं, वो डिग्रेड करने के लिए अलग मैकेनिज्म. जैसे ग्लाइकोजन डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, वैसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस को टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? इट इज नॉट अ स्टोरेज फॉर्म. ठीक है. तो जैसे ही प्रोटीन इज नॉट अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके. So there is a free amino acid pool in the everybody's body. So 100 gram of free amino acids will be there, which contribute amino acid pool. And amongst them, 50% glutamate and glutamine will be there. 10% of rest of the essential amino acid will be. Every individual required around 300 to 400 gram of protein per day, constantly. Okay, because same amount of protein is degraded in the body, and it must be synthesized. It is degraded and synthesized. Okay. So which represent the body's protein turnover. So there is one protein known as ubiquitin. There is a small polypeptide, small molecular weight peptide or protein, ubiquitin, which will facilitate or which will increase the degradation of proteins, right? Which will increase the degradation of protein. 30 to 50 gram of protein must be supplied per day in a diet for maintaining the nitrogen balance. Because protein, they are very important. If you don't have protein, then you have to take the protein. So that's why 30 to 50 gram protein intake must be there per day, right, to maintain a nitrogen balance. So metabolism of amino acids. So amino acid will undergo two reactions. First one is a transamination, and second one is a deamination. Okay. So amino acid will undergo transamination followed by deamination, and they will liberate or they will release or they will give ammonia. Okay. So amino group of amino acid will combine with ammonia to form a urea, which is the end product of protein and amino acid metabolism, right? So you should know what is the end product of amino acid and protein metabolism. That is nothing but the urea. So after deamination and transamination, whatever carbon skeleton is left of that of amino acid, जो भी कार्बन स्केलेटन बाकी बचा है ट्रांसअमाइनेशन डीअमाइनेशन के, वो जो
बचा हुआ स्केलेटन है, कार्बन का चेन है, that is utilized and that is converted into keto acids which can be utilized to generate the energy, synthesis of glucose, formation of ketone bodies or non-essential amino acids. अमीनो एसिड का डीअमीनेशन ट्रांसअमीनेशन होगा. डीअमीनेशन मतलब क्या कि अमीनो ग्रुप रिमूव करना. ट्रांसअमीनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टू वन फ्रॉम अमीनो एसिड टू अनदर रिसेप्टर और एक्सेप्टर. ठीक है, मतलब रिमूवल और ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप. लेकिन क्यों हो रहा है, टू सिंथेसाइज द यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इतना याद रखो. जो बचा हुआ स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन, वो का कन्वर्ट होता है कीटो एसिड्स में. जो कीटो एसिड्स बाद में डायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए यूज होते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, या फिर ग्लूकोज भी सिंथेसाइज करते हैं उससे, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ओके, सो दैट इज द fate of carbon skeleton. Now we'll see transamination deamination reaction. So what do you mean by transamination? Transamination is nothing but the transfer of amino group. Transfer of amino group from a amino acid to a keto acid by an enzyme known as a transaminase. And this enzyme transaminase is dependent on a coenzyme, that is a pyridoxal pyrophosphate. Now this pyridoxal pyrophosphate is nothing but it is obtained from vitamin C. विटामिन B6, दैट इज अ पायरिडोक्सल पायरोफॉस्फेट. यहाँ पे इतना ही याद रखो, ट्रांसअमीनेशन के लिए जो एंजाइम लगता है ट्रांसअमीनेज, दैट इज अ डिपेंडेंट ऑन पायरिडोक्सल पायरोफॉस्फेट एज अ कोएंजाइम. इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ट्रांसअमीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ट्रांसअमीनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो अपन ने देखा था कि सिट्रुलिन है, ऑर्निथिन है, आपका बाकी का जो अमीनो एसिड्स है, तो वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा मेन अमीनो एसिड का ट्रांसअमीनेशन में. तो उसमें का अमोनिया ग्रुप रिमूव होता है. जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, आपका ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलेट में अमोनिया ग्रुप डाल देंगे आप, तो उसका सिट्रुलिन बन जाएगा, ऑर्निथिन बन जाएगा, ऐसे. तो लाइकवाइज दैट. सो देयर इज वन थ्योरी नोन एज अ पिंग पोंग बाय बाय थ्योरी, दैट इज प्रपोज्ड फॉर ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन एंड इट इज प्रपोज्ड बाय स्नेल एंड रोस्टीन. सो उसमें सिर्फ इतना याद रखोगे, पिंग पोंग बाय बाय नाम की एक थ्योरी है कुछ, तो भी वो थ्योरी है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड. नाउ डीअमीनेशन. सो डीअमीनेशन मींस व्हाट, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, that is nothing but the deamination. We have seen the transamination reaction. Now deamination means removal of amino group from amino acid to generate a urea. So ammonia for urea synthesis. Removal of amino group from amino acid for urea synthesis is nothing but the deamination. So okay, there are two type of deamination: oxidative deamination and non-oxidative deamination. So oxidative deamination is catalyzed by glutamate dehydrogenase, and oxidative deamination of other amino acid, that is amino acid oxidase. So two enzymes will catalyze oxidative deamination, that is a glutamate dehydrogenase and amino acid oxidase. So amino acid oxidase mostly occurs in the kidney. Glutamate dehydrogenase mostly occurs in the liver. Non-oxidative deamination to liberate ammonia without undergoing the oxidation by amino acid dehydratase. Amino acid dehydratase is a non-oxidative deamination of amino acid. ठीक है, अमीनो एसिड का दो टाइप में डीअमीनेशन होता है, एक तो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव होता है. सो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन लीवर में कौन करता है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज लीवर में करता है, और किडनी में कौन करता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. तो किडनी में अमीनो एसिड ऑक्सीडेज करता है, लीवर में ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज करता है. ये होता है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कौन करता है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करता है अमीनो एसिड डीहाइड्रेटेज. ठीक है, और दोनों का भी एंड प्रोडक्ट क्या है, कीटो एसिड्स, अल्फा कीटो एसिड्स आफ्टर डीअमीनेशन या फिर आफ्टर ट्रांसअमीनेशन. सो अमीनो एसिड आफ्टर डीअमीनेशन एंड ट्रांसअमीनेशन विल गिव यू कीटो एसिड्स. ओके, सो कीटो एसिड्स ऑफ अमीनो एसिड, जो भी अमीनो एसिड उसका रिस्पेक्टिव कीटो एसिड बनेगा, क्योंकि अमोनिया ग्रुप रिमूव किया आपने, तो वहाँ पे अमोनिया की जगह ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और वो कीटो एसिड बन जाएगा एंड अमीनो एसिड डायहाइड्रेटेज. तो ये नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन जो करता है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन वो करता है अमीनो एसिड डीहाइड्रेज एंड अमीनो एसिड डीसल्फाइड्रेज.
नाउ अमीनो एसिड डीसल्फाइडेज किसका डीअमाइनेशन करेगा, अमीनो एसिड containing सल्फर ग्रुप, ठीक है. सो दोज अमीनो एसिड व्हिच विल हैव सल्फर इन देयर स्ट्रक्चर दे आर डीअमाइनेज्ड बाय desulfidase, amino acid desulfidase. Now the liberated ammonia in the transamination and deamination is transported utilized to synthesize the non-essential amino acids, purines, pyrimidines and amino sugar. Rest of the urea, rest of the ammonia liberated is excreted in the form of urea. ये समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे. Now next, that is the disposal of ammonia. Now what after metabolism. So जब मेटाबॉलिज्म हो चुका है आपका अमोनिया का, आपका अमीनो एसिड का और प्रोटीन का. प्रोटीन मतलब प्रोटीन का पहले क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, बाद में उसका अमीनो एसिड रिलीज होने वाला है, बाद में अमीनो एसिड का ही मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड इज नथिंग बट द सेम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. तो जैसे अमोनिया तो बन गया आपका, तो अमोनिया बन गया, अभी डीअमाइनेशन ट्रांसअमाइनेशन हो गया कि आपने अमोनिया रिलीज हो गया, अमोनिया आपने आपके बॉडी में यूटिलाइज भी हो गया, किसके लिए, पिरिमिडीन सिंथेसिस, प्यूरिन सिंथेसिस, आपका अमीनो शुगर सिंथेसिस के लिए, या फिर आपका दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए. लेकिन उसके बाद भी जो बचा हुआ अमोनिया है उसको क्या, वो तो बाहर निकालना पड़ेगा ना बॉडी में से. तो उसके लिए डिस्पोजल ऑफ अमोनिया, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, मतलब दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, अमाइनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक. ठीक है. सो अमाइनोटेलिक मीन्स क्या, अमाइनोटेलिक्स मीन्स एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, जैसे फिश हो गया, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, सील हो गया, फिश हो गया, या फिर आपका टर्टल हो गया. सो एक्वाटिक एनिमल्स विल डिस्पोज ऑफ अमोनिया इन द सराउंडिंग वाटर, दोज आर नोन एज अमाइनोटेलिक एक्वाटिक एनिमल. देन यूरिकोटेलिक, सो अमोनिया फॉर्म्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड इन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड. जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सर्पटनारे प्राणी होते हैं, सर्पटनारे प्राणी, और जो बर्ड्स होते हैं जैसे आपका स्पैरो, पैरॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बर्ड्स हैं, दे आर नॉट अ यूरियोटेलिक, दे आर यूरिकोटेलिक. सो अमोनिया उनमें जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद अमोनिया बनता है उनमें, तो वो अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, और उसके बाद में यूरिक एसिड रिमूव किया जाता है. दे आर यूरिकोटेलिक. नाउ इन केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्या करते हैं, जैसे अमोनिया बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद, वो अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में. सो यूरिया में, और वो यूरिया यूरिन के थ्रू पास होता है. Urea is soluble in water and that is excreted from urine. So that is a ureotelic. Ammonotelics, they are aquatic animals. Uricotelic, they are reptiles and birds. Ureotelic, animals and humans. Okay, ये आपको 12th में भी हो चुका है. So that's how disposal of formed ammonia is there. Toxicity of ammonia. Why there is a need of disposal? अगर अमोनिया बनता रहा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है. अमोनिया बहुत घातक होता है. So toxicity of ammonia. So increased level of ammonia in the blood and brain, that will affect the brain first. So ammonia when accumulate in the body result into slurring of speech, blurring of vision and can cause tremor, may lead to coma and finally death. Slurring of speech मतलब क्या? Slurring of speech मतलब बोबड़ा बोलना, मतलब तोतला बोलना. Slurring of speech मतलब तोतला बोलना. तोतला होता है जैसे किसी ने अगर ड्रिंक किया तो प्रॉपरली बात नहीं कर पाता. That is nothing but the slurring of speech, right? Then blurring of vision, आपकी आंखों में जलन होना. Tremors, tremors मतलब क्या, आपके मसल जो है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट होना. Leads to coma and finally death. So ammonia is a toxic. How ammonia is disposed? Okay, we have seen different ways to dispose the ammonia. जैसे अमोनोटेलिक, क्या अमोनिया डायरेक्टली रिलीज किया जाता है वाटर में बाय एक्वाटिक एनिमल्स, जो भी तैयार होता है मेटाबॉलिज्म का. Uricotelic, ammonia is converted into uric acid in the reptiles and birds. After that, uric acid is excreted, right? So in case of humans and animals, ammonia is converted into urea, and then this urea is soluble in water and excreted through. Now, how there is a formation of urea? That is a urea cycle, and that is the most important cycle for protein and amino acid metabolism. Now, urea cycle, this was proposed by Krebs and हैंसलेट. क्रेब्स एंड हैंसलेट, जो क्रेब साइकिल होता है, जो हंस क्रेब होता है, जो हंस क्रेब साइकिल मतलब जो क्रेब साइकिल जिसने प्रपोज किया था, दैट इज नथिंग बट द हंस क्रेब. तो हंस क्रेब और ये जो हंसलेट है, ये दो साइंटिस्ट है, हंस एंड हंसलेट, क्रेब्स एंड हंसलेट. ये दोनों ने मिलकर एक यूरिया साइकिल प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम. सो दैट्स व्हाई दिस यूरिया साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. रिमेंबर दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. Okay,
Krebs-Henselt cycle. This urea cycle is also known as Krebs-Henselt cycle. Okay, so urea cycle was the first metabolic cycle was given by or elucidated by Hans Krebs and Kurt Henselt. So that's why it was given by Hans Krebs and Kurt Henselt. That's why it is known as a Krebs-Henselt cycle. So that's why Krebs-Henselt cycle. Urea cycle is also known as Krebs-Henselt cycle. Now urea synthesized in the liver. Okay, so whatever ammonia is released after metabolism of your amino acids and protein, so that ammonia is utilized to manufacture or to synthesize the urea, and that urea is synthesized in the liver. So urea cycle is a 5-step reaction. So out of this urea cycle is a 5-step reaction. You see structure of urea C. Okay, if you see the structure of urea, NH3 C double bond O NH3, that is means there are 2 amino group in the structure of urea. NH3 C double bond O NH3, that is the structure of urea. So it has a 2 amino groups. So 2 amino groups, where it comes from a liberated ammonia group and other ammonia from aspartate. So aspartate is a amino acid. तो एक जो अमोनिया है यूरिया में का, वो मिलता है, कहाँ से मिलता है? जैसे आपका फ्री अमोनिया बन गया आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद आपका फ्री अमोनिया बन गया, एक तो वो अमोनियम ग्रुप आ गया, दूसरा कहाँ से आएगा? एस्पार्टेट से आएगा. एस्पार्टेट एक अलग अमीनो एसिड, तो उससे आएगा. So urea cycle is a 5-step reaction. First 2 enzyme for first 2 step, they are located in the mitochondria of cell. Rest of the enzymes are located in the cytosol. So this cycle is in a mitochondria as well as cytosol. ये 2 एंजाइम जो है, पहले 2 एंजाइम जो लगते हैं यूरिया साइकिल के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी के किसमें है? साइटोसोल में. सो फर्स्ट स्टेप जो है इसका, दैट इज सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट. ये आप बोलूंगा मैं बाद में, जो साइकिल है वो देखो. सो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, एंड इट इज अ irreversible step and rate limiting step in the urea cycle. Rate limiting step means what? Rate limiting step means that is the slowest step in that cycle. Rate limiting step means slowest step, जो बहुत ही धीरे स्टेप होता है. That is a irreversible and slowest step. मतलब ये irreversible step है यूरिया साइकिल का, और rate determining step है, या फिर rate limiting step है. Because in this step 4 ATPs are consumed. यहाँ पे 4 ATP लगता है. अब देखते हैं यूरिया साइकिल. So this is a urea cycle. See, first of all you have a glutamate over here. Glutamate is nothing but the amino acid. यहाँ पे glutamate है आपका. So glutamate is taken by glutamate dehydrogenase. So glutamate dehydrogenase will cause dehydrogenation of this enzyme, and they will dehydrogenation of glutamate, and there will be release of ammonia. Ammonia यहाँ पे release हो जाएगा glutamate से, और बाकी जो बचा है वो क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारेट. सो ग्लूटामेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया with the release of alpha ketoglutarate by the enzyme glutamate dehydrogenase. Now this alpha ketoglutarate, ये कहाँ पे नाम सुना है आपने? ये सुना होगा आपने क्रेब्स साइकिल में. तो लास्ट कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म देखा है आपने, उसमें आया था अल्फा कीटोग्लूटारेट. नाउ दिस रिलीज्ड अल्फा कीटोग्लूटारेट विल एंटर इन द क्रेब्स साइकिल. ये जो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट जो बना है, ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में. अभी यहाँ पे क्या मिला है आपको? अमोनिया. नाउ दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू कार्बामोइल फॉस्फेट. Now this ammonia is converted into carbamoyl phosphate by the enzyme carbamoyl phosphate synthetase 1, and this is the slowest step, irreversible step and rate limiting step in the urea cycle. Okay, so इसमें क्या होगा? ATP कंज्यूम होगा, और ये जो अमोनिया है वो फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा, तो उसको बनेगा कार्बामोइल फॉस्फेट. या देखो 2NH2 C++O PO4, NH2 C++O PO4, that is a carbamoyl phosphate. Now this carbamoyl phosphate यहाँ पे यूरिया साइकिल चलो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये आपको मेटाबॉलिज्म में अमोनिया मिल गया आपको. ये एक अमोनिया एसिड है ग्लूटामेट, उसका डिहाइड्रोजनेशन वगैरह सब होने के बाद अमोनिया मिलता है. ठीक है, अमोनिया कंबाइन होता है फॉस्फेट के साथ
कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है। नाउ ये ऑर्निथिन जो बोला था, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, हमने देखा है ये दीज आर द इंटरमीडिएट अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दे आर non proteinous amino acids, ornithine, citrulline. Okay, now this carbamyl phosphate will combine with the ornithine, ornithine will combine with the carbamyl phosphate, and ornithine will be converted into citrulline. Now you can see here, यहाँ पे जो है अमोनिया ग्रुप है ऑर्निथिन का, अमीनो टर्मिनल है ऑर्निथिन का, वहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो NH2 अटैच होगा। ये जो है ये पार्ट C डबल बॉन्ड हो NH2, ये इतना पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, तो उसका बनेगा सिट्रुलिन। ऑर्निथिन का क्या बनेगा, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन कौन बनाता है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोक्सिलेज, राइट। नाउ citrulline is converted into arginosuccinate. This citrulline is converted into arginosuccinate by the enzyme arginosuccinate synthetase. इसमें भी यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ATP वगैरह यूटिलाइज होगा, यहाँ पे arginosuccinate मिलेगा। नाउ ये दिस इज नथिंग बट द ऑक्सैलोएस्टेट, ऑक्सैलोएस्टेट ऐड होगा तो arginosuccinate बन जाएगा। नाउ दिस arginosuccinate is converted into arginine by arginosuccinase enzyme with the liberation of fumarate. Okay, यहाँ जो एस्टेट गया था अंदर तो इसमें, तो यहाँ से इसमें फ्यूमरेट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे फ्यूमरिक एसिड निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये क्यों करना है, ये अर्जिनोसक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये जो है ये जो अमाइड डाल रहा है इधर अंदर, तो अमाइड क्यों डाल रहा है कि यहाँ पे अपने पास दो ही अमोनिया ग्रुप है, यहाँ पे दो अमोनिया ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आपको यूरिया बाहर निकलना है, प्लस उसका जो ये जो है कौन, सिट्रुलिन, उसका अमोनिया टर्मिनस भी आपको जैसे कि वैसे इंटैक्ट रहने देना है, तो यहाँ पे और एक अमोनिया ग्रुप का रिक्वायरमेंट है, तो वो आएगा यहाँ से ऑक्जेलामाइड। ऑक्जेलामाइड जो है ऑक्जेलो अमाइड, उसको बोलते हैं ऑक्जेलामाइड। तो ये यहाँ पे बनाएगा अर्जिनोसक्सिनेट, जैसे अर्जिनोसक्सिनेट बनता है, that will be taken up by arginosuccinase enzyme and it will liberate fumaric acid or fumarate, same thing, then it will be converted into arginine. Now you can see here is a 3 amino group, यहाँ पे सिर्फ 2 थे, यहाँ पे कितने 3 amino groups. Now arginine will be converted into ornithine by enzyme arginase with the liberation of urea. यहाँ पे यूरिया निकल जाएगा, यूरिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पे अर्जिनिन का ऑर्निथिन बनेगा, सिर्फ यूरिया निकलना है बाहर, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज नथिंग बट द ऑर्निथिन। आगे नहीं साइकिल रिपीट होता है, ठीक है, जितना भी अमोनिया का मॉलिक्यूल है यहाँ पे मतलब यूरिया लिबरेट हो रहा है, यूरिया निकल रहा है। नाउ दिस यूरिया मॉलिक्यूल इज soluble in water and that's why it can be easily excreted in the form of urine, right? So that is the urea cycle. So glutamate आपको अमोनिया देगा, अमोनिया कंबाइन होगा कार्बामाइल फॉस्फेट से, तो ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन होगा टू फॉर्म सिट्रुलिन। सिट्रुलिन का बाद में अर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, अर्जिनोसक्सिनेट का बाद में अर्जिनिन बनेगा विद द लिबरेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड, और अर्जिनिन से यूरिया रिलीज हो जाएगा और ऑर्निथिन बनेगा, दैट इज द यूरिया साइकिल। इज दैट क्लियर? नाउ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स ऑफ यूरिया साइकिल. So what are the different metabolic defects? So hyperammonemia type 1. Hyperammonemia type 1 is because of carbamyl phosphate synthesis. If there is a defect in anybody, किसी में अगर carbamyl phosphate synthesis का एंजाइम है वो डिफेक्टिव है, तो वहाँ पे क्या होगा, hyperammonemia होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया यूटिलाइज ही नहीं होगा, जो अमोनिया बन गया है उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा ना कार्बामाइल फॉस्फेट में, तो अमोनिया लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज अ hyperammonemia type 1 because of defect in the carbamyl phosphate synthesis enzyme. Okay, second one is a hyperammonemia type 2 and it is due to the defect in the ornithine transcarbamylase. Ornithine transcarbamylase is the enzyme that is defect. Am I audible you clearly? Third one is a citrullemia means increase in the citrulline level. Okay, so hyperammonemia means increase in the ammonia level of body, that is the hyperammonemia. Type first is due to defect in the carbamyl phosphate synthesis first enzyme. Type second is due to ornithine transcarbamylase
enzyme defect in ornithine transcarbamylase. Citrullinemia means increase in the citrulline level of blood body. Increase in the citrulline level of body or blood, that is the citrullinemia due to defect in the arginosuccinate synthesis. सिट्रुलिन से क्या बनता है? सिट्रुलिन से बनेगा एक अपने यूरिया साइकिल लेगा, पहले क्या होता है अमोनिया बनता है, ठीक है। कौन एंजाइम है? दैट इज कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेसिस। ये अमोनिया जो बना है उसका कार्बामाइल फॉस्फेट बनेगा। कौन बनाएगा? ये एंजाइम। तो अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव है तो कार्बामाइल फॉस्फेट बनेगा ही नहीं, मतलब आपके बॉडी में अमोनिया जैसे वैसे पड़ रहेगा तो अमोनिया लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड क्या होता है? हाइपर अमोनीमिया। कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया एग्जांपल, उसके बाद क्या बनना है आपका? जो ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन हो गए सिट्रुलिन में। तो कौन एंजाइम करता है? वो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोक्सिलेज कार्बोमाइलेज, ठीक है, कार्बोमाइलेज ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर ये एंजाइम में डिफेक्ट है तो क्या होगा? सिट्रुलिन बनेगा ही नहीं, सिट्रुलिन बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली रिवर्स डायरेक्शन में एक्युमुलेशन होते जाएगा अमोनिया, उसको बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप से कट। सिट्रुलिमिया मीन्स क्या? तो जो सिट्रुलिन बन गया यहाँ पे, सिट्रुलिन का कन्वर्जन कहाँ पे होगा? अर्जिनोसक्सिनेट। कौन करेगा? अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, राइट, अपन ने देखा है। तो यहाँ पे ये एंजाइम का डिफेक्ट होगा तो सिट्रुलिमिया बन जाए, सिट्रुलिन ही रहेगा बॉडी, उसके आगे अर्जिनोसक्सिनेट नहीं बनेगा यूरिया साइकिल में, तो सिट्रुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं सिट्रुलिनेमिया। देन अर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया। मान लीजिए कि अर्जिनोसक्सिनेट बन गया, उसके बाद में उसका क्या बनना है? अर्जिनिन बनना है। तो कौन बना रहा है उसका? अर्जिनोसक्सिनेज नाम का एंजाइम बना है। अगर ये एंजाइम में डिफेक्ट है तो क्या होगा? उसमें अर्जिनोसक्सिनिक एसिड ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो उसको बोलते हैं अर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया। नाउ लास्ट स्टेप क्या है यूरिया साइकिल का? ये अर्जिनोसक्सिनेट जैसे ही बन गया उससे अर्जिनिन बनेगा, अर्जिनिन बनेगा, तो अर्जिनिन का यूरिया लिबरेट होगा। कैसे? अर्जिनेज नाम का एंजाइम क्या करेगा? उसको यूरिया रिलीज करेगा और ऑर्निथिन बनाएगा। नाउ दिस इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन दिस एंजाइम अर्जिनेज, यू विल गेट हाइपर अर्जिनेमिया, अर्जिनिन ही ज्यादा होगा आपके बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हाइपर अर्जिनेमिया। So it is a metabolic defect of urea cycle. That's it. Now metabolism of individual amino acid and their effect. Okay. So metabolism individual amino acid का हम नहीं देख रहे, आप एक बार बुक में से देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें कुछ रिएक्शंस नहीं, उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन डीएमिनेशन उतने ही रिएक्शंस। ग्लाइसिन का अगर एंजाइम है तो ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म है तो ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज, अगर टायरोसिन का है तो टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज, टायरोसिन डीअमाइनेज, ऐसे एंजाइम होते हैं उसमें, फिनाइलालानीन ट्रांसअमाइनेज, ऐसे ही, मतलब दैट्स व्हाई वो सिंपल है, आप देख लीजिए, उसके लिए वो लिया नहीं, बाकी उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स देयर मेटाबॉलिक डिफेक्ट, और उसमें क्या होता है, तो वी विल सी वन बाय वन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जीपैट। सो ग्लाइसिन मेटाबॉलिक डिफेक्ट इज अ ग्लाइसिन यूरिया। अगर ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव है तो उसको बोलेंगे ग्लाइसिन यूरिया। और प्राइमरी हाइपर ऑक्सैलोयूरिया, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द renal absorption of increased serum level of glycine, due to defective renal reabsorption of increased serum glycine। तो अगर ग्लाइसिन बॉडी में ज्यादा है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा इसमें यूरिन में, लेकिन अगर उसमें क्या होता है कि फॉल्टी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है किडनी में, क्या हो रहा है कि रीअब्सॉर्प्शन करना ही नहीं है उसका ग्लाइसिन का, फिर भी अब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ग्लाइसिन यूरिया। ब्लड में आपका ग्लाइसिन लेवल बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लाइसिन यूरिया। और उसको बोलते हैं, नाउ सेकंड वन इज प्राइमरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। ऑक्सैल्यूरिया मींस यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलेट का लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम, जो उसमें डिफेक्ट अगर हो गया तो देयर विल बी इंक्रीज्ड यूरिनरी ऑक्सैलेट, तो ऑक्सैलेट इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू ऑक्सैलेट स्टोन और किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन होता है ऑक्सैलिक एसिड से ही बनता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट, तो स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सैलेट का, या फिर कैल्शियम यूरेट का, यूरिक एसिड स्टोन। प्राइमरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज। नाउ सेकंड वन इज फिनाइलअलानीन।
So उसका डिफेक्ट क्या होगा उसका मेटाबॉलिज्म. So next amino acid is a phenylalanine. So metabolism of phenylalanine. So in case of metabolism of phenylalanine, defect is known as a phenylketonuria, PKU, phenylketonuria, and this is very important. Okay, so this phenylketonuria name is given due to the accumulation of metabolite known as a phenylpyruvate. So that's why phenylpyruvate is a keto acid. Phenylpyruvate is a keto acid, and that's why it is known as a phenylketonuria. It is a defect in the metabolism of phenylalanine. That is a branch. That is a aromatic amino acid. यहाँ पे बेंजीन रिंग हुआ याद रखो आप. तो phenylketonuria is a defect of phenylalanine, right? So क्यों बोलते हैं उसको phenylketonuria? Due to इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एक फिनाइल पायरुवेट, ये फिनाइल पायरुवेट बनता है. फिनाइल पायरुवेट इज नथिंग बट द कीटो एसिड. So that's why it is known as a phenylketonuria. Phenylketonuria, PKU. Now, why this is a phenylketonuria occurs? क्यों होता है phenylketonuria? There is a deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme. So जो मेटाबोलाइज करता है phenylalanine enzyme, phenylalanine अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है phenylalanine hydroxylase. तो इसका अगर डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है, तो that will leads to accumulation of this enzyme. This product known as a phenylpyruvate keto acid or phenylketonuria. Blocking of so this enzyme, if there is a defect in the phenylalanine hydroxylase, that leads to blocking of conversion of phenylalanine to the tyrosine. Phenylalanine का conversion होता है tyrosine में, ठीक है. So if this enzyme phenylalanine hydroxylase ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालेगा कहाँ पे, जो प्यारा पोजीशन है, प्यारा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो उसमें डालेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट है तो ये होगा नहीं काम. तो जो phenylalanine है, so that will not be converted into tyrosine. So phenylalanine will not be converted into tyrosine due to defect in the phenylalanine hydroxylase enzyme, and that leads to phenylketonuria. So what are the clinical symptoms? Clinical symptoms of this phenylketonuria. So that is mental retardation, defect in the myelin formation, insufficient synthesis of serotonin. So जो भी myelin होता है, नर्व एंडिंग होते हैं, आपका जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में myelin नाम का एक लेयर होता है. So there is a myelin sheath on the neuron. That is very important. That acts as a insulating material and also nourishes the neuron. Okay, so there will be faulty conduction in the neuron. So जो न्यूरोपैथी होगा उसमें insufficient synthesis of serotonin, because conversion of phenylalanine to the tyrosine to the dopamine and then this serotonin. Okay, highest. So यहाँ पे डिफेक्ट अगर होगा phenylketonuria का तो उसमें ये सिम्टम्स आएंगे. कौन से? मेंटल रिटार्डेशन, then defect in the myelin formation, insufficient synthesis of your serotonin. Now there is one test known as a Gu3 test. Gu3 test is used to diagnose the phenylketonuria. In that case, Bacillus subtilis is used for the assay of phenylalanine. Okay, ये याद रखो कि Bacillus subtilis is a microorganism that is used for assay of phenylalanine. अमीनो एसिड का assay करना है. Okay, so microbial assay of amino acid. So for the phenylalanine, Bacillus subtilis is used, and this Gu3 test is used to diagnose the phenylketonuria. Okay, and the end product of this is the phenylpyruvate, which is a keto acid, and it is detected by ferric chloride test. That's it. ये इतना क्यों ले रहा हूँ मैं? Because this was a question in GPAT 2018. Okay, so phenylketonuria is due to the defect of which enzyme? The answer was phenylalanine hydroxylase. वहाँ पे चार ऑप्शन दिए थे: phenylalanine oxidase, phenylalanine dehydrogenase, phenylalanine hydroxylase, like that. तो उसका आंसर था phenylalanine hydroxylase. Is that clear? Now next is tyrosine. कि टायरोसिन अमीनो एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें अगर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? तो if there is a defect in the tyrosine metabolism, then there is a tyrosinemia type first, tyrosinemia type second, neonatal tyrosinemia, like that. We will discuss one by one. Okay, so if there is a defect
in the if there is a deficiency of enzyme known as a fumaryl acetoacetate hydroxylase, fumaryl acetoacetate hydroxylase or malonyl acetoacetate isomerase. If there is a deficiency of these two enzymes, fumaryl acetoacetate hydroxylase or malonyl acetoacetate isomerase, fumaryl or malonyl acetoacetate isomerase और hydroxylase, ये एंजाइम का डिफेक्ट अगर होगा तो that will leads to tyrosinemia type first, means increase the level of tyrosine in the body. Okay, that's it. So अगर ऐसा होगा तो that leads to diarrhea, vomiting, cabbage like odor. डायरिया, वोमिटिंग, आपको डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, आपके बॉडी में से कैबेज लाइक जैसे गोभी होता है ना, पत्ता गोभी, उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आएगा, ठीक है. सो दैट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, दैट इज नोन एज अ टायरोसिनेमिया टाइप फर्स्ट ड्यू टू द डिफेक्ट और डिफिशियंसी इन द fumaryl acetoacetate hydroxylase and malonyl acetoacetate isomerase, ये दोनों एंजाइम है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज टायरोसिनेमिया टाइप सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज Riechner-Hanhart disease, Riechner-Hanhart disease. Tyrosinemia second is known as a Riechner-Hanhart disease. Okay, and this is due to the defect in the enzyme tyrosine transaminase. Okay, now this disease is characterized by dermatitis, eye lesions, rarely a mental retardation. मतलब अगर टायरोसिनेमिया सेकंड हो गया आपको तो क्या होगा, आपको आपके स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होगा, डर्मेटाइटिस उसको बोलते हैं. सो डर्मेटाइटिस होगा, आई लेशंस हो गए, आपके आईज में जख्म हो गए, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा. ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ टायरोसिन एंड इट्स मेटाबॉलिट्स, राइट. ये टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज क्या करता है, टायरोसिन का ट्रांसअमाइनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप फ्रॉम टायरोसिन टू अदर कीटो एसिड, बट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम it leads to tyrosinemia type second or Richter-Hanhart syndrome, and it is characterized by dermatitis, mental retardation and all that. There will be accumulation of tyrosine and its metabolite. Now next one is a neonatal tyrosinemia. Neonatal tyrosinemia, it is due to the absence of enzyme para-hydroxyphenyl pyruvate dehydrogenase or dioxide. It is due to the absence of enzyme known as a para-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase, and it is treated with ascorbic acid. ये बच्चों में होता है इसलिए उसको neonatal tyrosinemia बोलते हैं. Now next one is alkaptonuria or black urine disease. This is important. This was asked in the question again in the GPAT. तो ये एक important है, alkaptonuria. It is a defect in the metabolism of tyrosine, alkaptonuria, or it is also known as a black urine disease. Okay, alkaptonuria is also known as black urine disease. It is an inborn error of metabolism. हर एक में जैसे by birth एक एंजाइम का डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं डिफेक्ट. एंजाइम कौन सा होता है, homogentisate oxidase. If there is a inborn defect of enzyme known as a homogentisate oxidase, it will leads to alkaptonuria or black urine disease. So now what is the role of this enzyme? Homogentisate accumulates in the blood and excreted in the urine, and oxidized form of this homogentisate is nothing but the having a brown or black color, and that's why it is known as a black urine disease. Okay, so जो टायरोसिन है उसका एक डिफेक्ट है known as alkaptonuria और ब्लैक यूरिन डिसीज. तो ये क्या होता है कि जेनेटिकली जिसमें ये एंजाइम नहीं है, कौन सा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीडेशन करेगा किसका, इसका होमोजेंटिसेट का. तो होमोजेंटिसेट इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. ये इंटरमीडिएट हो तो इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा ब्लड में और उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन में. लेकिन यूरिन में एक्सक्रीशन होते समय वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का, तो उसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज. ओके, सो alkaptonuria is also known as black urine disease, and it is due to the deficiency of enzyme homogentisate oxidase
Okay, that is responsible for the enzyme responsible for the metabolism of tyrosine. So यहाँ पे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका फिनाइलकीटोन यूरिया पे आता है, 2018 में पूछा था। एक अल्केटोन यूरिया जो है ब्लैक वाटर यूरिन डिसीज, ओके, ब्लैक यूरिन डिसीज, तो इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो इसको थोड़ा सा और एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें डिफेक्टिव एंजाइम कौन सा है और किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि फिनाइलकीटोन यूरिया इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, और आपको 4 ऑप्शन देंगे, ग्लाइसिन, फिनाइलिन, टायरोसिन, तो उसका आंसर होगा फिनाइलअलानिन। नाउ अल्केप्टोन यूरिया और ब्लैक वाटर यूरिन डिसीज और ब्लैक यूरिन डिसीज इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, और उसको 4 ऑप्शन में आपको अमीनो एसिड का नाम देंगे, तो यहाँ पे टायरोसिन होगा। या फिर आपको मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट देंगे, फिनाइलकीटोन यूरिया, ग्लाइसिन यूरिया और हाइपरऑक्सिल यूरिया, देन आपको ये देंगे अल्केप्टोन यूरिया, और दूसरे कॉलम में देंगे आपको डिफरेंट अमीनो एसिड एंड बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, मैच द मेटाबॉलिक डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अमीनो एसिड। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज अगेन टायरोसिन। अपन ने देखा है फिनाइलअलानिन, ग्लाइसिन, तो नाउ टायरोसिन। अगेन वो जो टायरोसिन था उसके कंटिन्यूशन में ही है कि बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म। सो डिफेक्ट इन द टायरोसिन, defect in the tyrosinase which is responsible for the biosynthesis of melanin. If there is a defect in the tyrosinase enzyme which is important for biosynthesis of melanin, melanin is a black pigment in the body. So skin color, आपके जो स्किन का कलर है, कोई थोड़ा डार्क ब्लैक है, कोई एकदम गोरा है, कोई एकदम थोड़ा सा चॉकलेट टाइप है, जो ब्राउन है थोड़ा सा, क्यों स्किन के कलर डिफरेंट क्यों है? बिकॉज अमाउंट ऑफ मेलानिन, मेलानिन कंटेंट ज़्यादा होगा वो डार्क होगा, इसमें मेलानिन कंटेंट कम होगा वो वाइट होगा। सो ये कहाँ से बनता है मेलानिन? ये बनता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। सो टायरोसिन अमीनो एसिड आफ्टर मेटाबॉलिज्म will be converted into melanin after a series of metabolism. So if there is a defect in the tyrosinase enzyme, so that will leads to defect in the synthesis of melanin. अगर आपके बॉडी में मेलानिन नाम का पिगमेंट नहीं होगा तो आपके बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होगा, if there is deficiency of melanin, your skin will be totally white. So due to defect of this tyrosinase, albinism is a disease known as albinism. That is a genetic disease, that is a autosomal recessive disorder or inborn error of generalized lack of। कुछ पेशेंट का, अब देखो कुछ लोग देखेंगे आपको सर से लेके पाँव तक पूरे के पूरे व्हाइट है, लेकिन वो फॉरेन नहीं है, अपने ही इंडिया के लोग हैं, लेकिन वो पूरा के पूरा व्हाइट है, मतलब भूत जैसे दिखते हैं वो पूरा के पूरा व्हाइट। क्यों? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम अल्बिनिज्म। देयर इज वन डिसीज नोन एज अल्बिनिज्म। सो अल्बिनिज्म क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ डिफेक्ट इन द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, डिफेक्ट इन द टायरोसिनेज एंजाइम, फॉल्टी टायरोसिनेज एंजाइम होता है उनमें, क्योंकि उनको जेनेटिक्स में, उनके जेनेटिक मेकअप में थोड़ा सा एरर हो चुका है, जैसे वो बन रहे थे माँ के पेट में, तो उनमें ये एंजाइम का डिफेक्ट होगा। उसकी वजह से उनमें क्या होता है, मेलानिन जो आपके स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलानिन, तो वो बन नहीं पाता। सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज अल्बिनिज्म। तो वो सब पूरे व्हाइट होते हैं, पूरा व्हाइट होता है अल्बिनिज्म। आपने देखा होगा मार्केट में या इधर उधर घूमते होंगे, कम होता है, वैसे रेयर होता है डिसऑर्डर, बट होता है, मैंने तो बहुत सारे लोग देखे। देन अगेन ल्यूकोडर्मा is also a type of albinism. Leukoderma vitiligo, localized loss or degeneration of melanocytes which result into white patch on the skin. कि ये इनिशियल स्टेज है। देखो आप जिसको मराठी में कोड बोलते हैं, कोड हो गया उसको, कोड हो गया मतलब उसका स्किन व्हाइट होने लगा है। पहले तो ब्राउन था, पहले ब्लैक था, अभी क्या हुआ है, उसके स्किन के ऊपर कुछ व्हाइट पैचेस आने लगे। स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस आएंगे, धीरे धीरे वो पैचेस बढ़ते जाएंगे और पूरा व्हाइट बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो। अगर पैचेस मिल रहे हैं आपको व्हाइट स्किन पे,
अगर कुछ जख्म नहीं है, कुछ दूसरा कारण नहीं है, तो उसको चेक करो, इसको जाके चेक करो पहले डॉक्टर. You may be suffering from leukoderma, so that is known as leukoderma. So you will get a white patches on the skin. There is a degeneration of melanocytes. ये melanocytes क्या होता है? Cell containing melanin. Okay, cell containing melanin, they are known as the melanocytes. If there is a degeneration of them, you will get leukoderma. Again, graying of skin. ग्रेइंग ऑफ हेयर इज ड्यू टू द लैक ऑफ मेलानोसाइट एट द हेयर फॉलिकल. कि आपके हेयर के रूट में अगर मेलानिन नहीं है तो आपका ब्लैक हेयर नहीं बनेगा, आपको बनेगा ब्राउन हेयर और ग्रे हेयर. कि मेलानिन नहीं है आपके हेयर के नीचे फॉलिकल में, तो आपका ग्रे हेयर बनेगा. आजकल तो वो फैशन में है, लड़कियां तो बहुत ग्रे बन के हेयर्स बना के घूम रही है, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाना अलग चीज है, और ये जो ये डिसीज है. अगेन, मोल्स ऑन द बॉडी is due to the hyperpigmentation and hyperactivity of melanocytes. Moles, जो मस्सा होता है, मस्सा होता है आपके बॉडी के ऊपर, किसी के बॉडी के ऊपर बहुत सारे मस्से होते हैं, उसको बोलते हैं मोल्स. तो वहाँ पे ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक होता है. आपकी बॉडी मतलब फेयर है, गोरी है थोड़ी सी, लेकिन आपको एक मस्सा है, तो वो ब्लैकिश होगा. क्यों होगा? बिकॉज हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ मेलानोसाइट्स. कि मेलानिन कंटेनिंग सेल जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव, या फिर वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होता है. दैट इज नथिंग बट द मोल्स. ये सब क्यों हो रहा है? डिपेक्ट इन द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म. सो डिपेक्ट की एंजाइम कौन सा है? टायरोसिन. डिपेक्ट की एंजाइम कौन सा है? टायरोसिनेज. सो यू शुड नो हियर अल्बिनिज्म इज द डिसीज डिपेक्ट इन द टायरोसिनेज, and it is a tyrosine metabolism defect or inborn error of tyrosine. ये याद रखो, आता है कभी. Now tryptophan. So tryptophan metabolic defect of tryptophan is known as a Hartnup disease. So it was described by Hartnup family, the scientist of that is a Hartnup, and उसके पूरे फैमिली को हो गया था, तो उसने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, तो that's why it is known as a Hartnup disease. Okay, it is characterized by lower plasma level of tryptophan and neutral acids, pellagra like symptoms. पेलेग्रा जैसे होता है, पेलेग्रा क्यों होता है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से, तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं वैसे सिम्टम्स इसमें भी आए. नाउ सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. सो डिफेक्ट ऑफ सिस्टीन मेटाबॉलिज्म. सिस्टीन यूरिया, कॉमन हेरिडिटरी डिसीज ऑफ कैरियर सिस्टीन. कॉमन हेरिडिटरी डिसीज ऑफ अमीनो एसिड सिस्टीन which is present in the kidney for reabsorption of cysteine lysine because of C. क्या होता है कि आपके किडनी में एक कैरियर सिस्टम होता है, नोन एज अ सिस्टीन कैरियर सिस्टम होता है आपके इसमें किडनी में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड. आपके किडनी में से ब्लड फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें सब न्यूट्रिशन, अमीनो एसिड, ये सब क्या है? देयर इज वन सिस्टम नोन एज अ कैरियर सिस्टम जो रहता है उसमें. जैसे हमने देखा है ना, कैरियर्स, प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन कैरियर किडनी में भी होते हैं रीअब्सॉर्प्शन. तो आपका जो ब्लड फिल्ट्रेट हो गया है, फिल्ट्रेशन के बाद में ब्लड सेल्स ही बाकी बचते हैं, बाकी तो सब फिल्ट्रेट होता है, तो उसमें आपका अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट सब रहेगा, रीअब्सॉर्प्शन होता है उसका. आप जब आप यूरिन फॉर्मेशन देख, या आपको मालूम भी होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि कैरियर सिस्टम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन, ऑर्निथिन, अर्जिनिन एंड लाइसिन. Now this carrier system become defective, and that's why there is a cysteine urea. मतलब there is a excretion of cysteine and these amino acid. If you find cysteine in your urine, that is known as a cysteine urea. So increased level of cysteine in urea. Again, cystinosis, that is a storage disease. Cystinosis is a cysteine storage disease defect in the cysteine reductase enzyme. And now the cysteine can deposit into the tissue and amino acid urea will be also with there. Patient dies in the 10 days. अगर किसी को सिस्टिनोसिस हो गया, मतलब सिस्टीन का स्टोरेज डिसीज हो गया, तो उसको बोलते हैं दैट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द सिस्टीन रेडक्टेज. सिस्टीन रेडक्टेज नाम का एंजाइम डिफेक्ट होगा तो वो आदमी 10 दिन के अंदर मर जाए, बिकॉज देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ सिस्टीन इन द टिश्यू and there will be amino acid urea. Now homocysteine urease. So homocysteine urease, it is also a type of metabolic defect of cysteine. So type first, homocysteine urea type first, is due to a defect in the enzyme cysteine
सिस्टोथायोनिन सिंथेसिस। ओके, सो ये बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आप पढ़ लेना। प्लीज रेफर अदर टाइप्स फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज valine, leucine, isoleucine. These three amino acids are aliphatic amino acids containing branch chain, right? ये हमने देखा था, leucine, valine, isoleucine, these are three branched chain amino acids, right? Now maple syrup urine disease. Maple syrup urine disease is a defect in the metabolism of these amino acids. So maple syrup urine disease is due to the defect in the metabolism of branch chain amino acids, okay, or intermediate branch chain ketonuria. It is also known as intermediate branch chain ketonuria. So what happens in this? So patient urine smells like a maple syrup. अगर हो गया तो आपका जो यूरिन है वो कैसे स्मेल करेगा, जैसे आपका सिरप होता है वैसे। और बर्ट शुगर, जो आपने शुगर जलाया तो उसका जो स्मेल आता है तो उसके जैसे स्मेल आएगा यूरिन का, बैकअप बिकॉज ऑफ दिस it is known as a maple syrup urine disease. So it is due to a defect in the enzyme, known as branched chain alpha keto acid dehydrogenase. Branched chain alpha keto acid dehydrogenase. If there is a deficiency of this enzyme, branched chain alpha keto acid dehydrogenase, अगर ये जो एंजाइम है अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजनेज, ये क्या करता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, आपके यूरिन में ये सब आ जाएगी, वैलिन, लूसीन, आइसोल्यूसिन, तो उसको बोलते हैं मैपल सिरप यूरिन डिसीज। एंड दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन इन द इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। अगेन यहाँ पे एक क्विकली रिव्यू लेते हैं कि इनबॉर्न एरर्स ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, लाइक phenylketonuria is due to the phenylalanine hydroxylase, then tyrosinemia type 2, neonatal tyrosinemia, we have seen this, alkaptonuria, we have seen this, just it is a list of same। अल्बिनिज्म क्यों होता है पूरा डिटेल में देखा है हमने लास्ट स्लाइड। एक स्लाइड यहाँ पे एक बार जस्ट क्विक रिव्यू लेते। सो phenylketonuria is due to defect in the phenylalanine hydroxylase. Tyrosinemia type 2 is due to the defect in tyrosine transaminase. Now neonatal tyrosinemia is due to defect in the para-hydroxyphenylpyruvate dehydrogenase. Now alkaptonuria is due to defect in the enzyme of homogentisate oxidase. Now tyrosinemia type 1 is due to the defect in malonyl acetoacetate isomerase or fumaryl acetoacetate hydroxylase. We have seen this. Then albinism is due to the metabolic defect in the tyrosine, that is due to defect in tyrosinase. Now errors of sulfur containing amino acids. Now these are cysteine urea, cystinosis, homocysteine urea type, first type, second type. Yes, glycine, we have seen this also, glycine urea. Then this due to defect in the intestinal absorption of tryptophan, there is a heart nerve disease, we have seen this. Then maple syrup urine disease, we have seen this all. So यहाँ पे दूसरा कोई important नहीं है। Next one is yes, this will be a last slide I think. So glycine, here is amino acid and their derivative of neurotransmitter. कि बॉडी में जितने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो those are biosynthesized from amino acids only. So glycine is a neurotransmitter, glycine. So it is a inhibitory neurotransmitter in the spinal cord. So it is a derivative of glycine. Then again glutamate. So it is an example of excitatory neurotransmitter, glutamate. Okay. So amino acid as a neurotransmitter. Dopamine. Now dopamine is present in the blood. Okay. Dopamine present in the neurons of dopaminergic neurons. कि जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें डोपामाइन का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये डोपामाइन कैसे बनता है, ये डोपामाइन बनता है आपके फिनाइलअलानिन का कन्वर्जन होता है टायरोसिन में, टायरोसिन का कन्वर्जन होता है डाइहाइड्रोक्सी टायरोसिन, उसके बाद डोपामाइन का कन्वर्जन होता है नॉर एड्रेनालिन में। सो इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन ये आप बाद में देखिए जब when we will see drug acting on sympathetic nervous system, so we will see how there is a biosynthesis of neurotransmitters. Okay, we will see when we will take that chapter. So epinephrine, norepinephrine, they are the sympathetic neurotransmitters, noradrenaline and noradrenaline. Then serotonin, it is a 5-hydroxytryptamine which will regulate the cerebral activity and behavior. Then GABA,
gamma aminobutyric acid. It is a inhibitory neurotransmitter in the brain. We have seen it again. Same यही वहाँ पे जो है वही है. Few biogenic amines and there. So amino acid serine से बनता है आपका ethylenamine. Serine से बनता है ethylenamine and that forms a choline. Glutamate से बनता है gamma aminobutyric acid. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. हिस्टाडीन जो है आपका अमीनो एसिड उससे बनता है हिस्टामाइन. हिस्टामाइन इट हैज अ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल. हिस्टामाइन क्या है? इट इज आपका जो एलर्जी वगैरह जो होगा आपका एलर्जी उसके बहुत सारे हिस्टामाइन के एक्शंस है, वो हम बाद में देखेंगे जब आप विल सी ड्रग एक्टिंग एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग. उसके बाद में फिनाइल अलानिन जो अमीनो एसिड है उससे बनता है डोपामाइन. मैंने बोला है लास्टली. टायरोसिन से बनता है टायरामाइन. दिस टायरामाइन इज present naturally in the milk and milk product. जो मिल्क होता है, मिल्क चीज होता है, आपका बटर होता है, उसमें भी टायरामिन. तो इट इज अ वैसोप्रेसर. ये आपका ब्लड वेसल को प्रेस कर देगा, ब्लड प्रेशर को. ये बाद में इसका एक ड्रग इंटरेक्शन होता है, वो हम देखेंगे जब भी हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, मतलब जो भी सिंथेटिक ड्रग्स है वो देखेंगे तब उसमें. नाउ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है ट्रिप्टामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन. ये जो है आपने देखा है ट्रिप्टामाइन इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है. मेलाटोनिन ऑल्सो मेलाटोनिन विल कंट्रोल योर सर्कैडियन रिदम, मतलब आपका जो स्लीप साइकिल है या फिर आपका जो मेटाबॉलिक साइकिल है वो कौन कंट्रोल करेगा? मेलाटोनिन. कहाँ से बनता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड. सिस्टीन से बनता है आपका टाउरिन. सिस्टीन से बनता है आपका टाउरिन. इट इज अ टाउरिन जो है इट इज अ कंटेंट ऑफ बाइल एसिड्स. जो सोडियम टाउरोकोलेट, सोडियम गाइकोकोलेट होते हैं, जो बाइल एसिड होते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म.